Good morning, students. Welcome again here in this video tutorial. Myself, Nashima Khan. And students, as you all of you know that I am explaining chapter number 4 of class 7, Social Science, the Mughal Empire. Student, this is your part 2. So, before going to explain the chapter, first of all, I would like to tell you some important things. So, at the challenging time of COVID 19, we have to be very careful now that things have opened in our country. We have to ensure that the virus does not spread. So that's why we need to follow the COVID 19 appropriate behavior to keep ourselves and our families safe. So, the number one, wear mask properly. Yes, you have to wear mask properly and regularly. Student, this is also important thing. Just stay at least 6 feet from others. How much? Yes, you have to stay at least 6 feet from others, or you can say that do gaj, or near about 2 arms. So always stay 6 feet from others. Number three, wash your hand frequently. Yes, you have to wash your hand frequently, always with soap and water for at least 20 seconds. How much? Yes, with soap and water for at least 20 seconds. Beta, always remember one more important thing also, that do not touch your face, do not touch your nose, eyes, and mouth. Okay? And do not share your food or drink with others. Now come back to your chapter, or come back to your part 2. So before going to start the part 2, just take a quick recap of our part 1, that we discussed who were the Mughals. So the Mughals were descendants of two great lineages of rulers. Yes, how much? Yes, two great lineages of ruler. From their mother side, they were descendants of Genghis Khan, and from their father side, they were the successor of Timur. We already learned regarding Mughal military campaigns and major campaigns and events from Mughal emperors. So, first Mughal emperor was Babur. Who? Yes, first Mughal emperor was Babur in 1526 to 1530. So, and then in 1526 he defeated Ibrahim Lodi and his Afghan supporters at Panipat. We already learned about Humayun also from 1530 to 1540, then 1555 to 1556. As you all of you know that Humayun divided his inheritance according to the will of his father. Students, now just let's come here. Start Akbar. Akbar 1556 to 1605. बेटा ये वो टाइम पीरियड नहीं है कि उनकी किस ईयर में उनका बर्थ हुआ और किस ईयर में उनकी डेथ हुई. ये वो टाइम पीरियड है कि कब उन्होंने मेजर कैंपेन चलाए और इवेंट्स करे इंडिया में, और उनका जो शासन काल था वो कौन से टाइम से कौन से टाइम तक था. So when 1556 to 1605, Akbar was 13 years old when he became emperor. At which age Akbar became emperor? At the age of only 13 years. जब वो 13 years के थे वो emperor बन गए. Then his reign can be divided into 3 periods. How much periods? Yes, 3 periods. The number one, 1556 to 1570. 1556 to 1570. Akbar became independent of the regent Bairam Khan and other members of his domestic staff. वो इंडिपेंडेंट हो गए. जो उनके रीजेंट थे, जो उनकी देख रेख करते थे, कौन? बैरम खान, और जो उनके अदर मेंबर्स थे उनके डोमेस्टिक स्टाफ के. एंड यू नो व्हाट,
He launched military campaigns against the Suris and the other Afghans, against the neighboring kingdoms of Malwa and Gondwana. उन्होंने क्या किया? उन्होंने what major campaigns चलाए about what? Yes, military campaigns were launched against the Suris and other Afghans, against the neighboring kingdoms of the Malwa and Gondwana, and to suppress the revolt of his half brother Mirza Hakim. उन्होंने लॉन्च करा कैंपेन भी किसके? जो रिवॉल्ट उनके उसके हाफ ब्रदर स्टेप ब्रदर थे मिर्जा हाकिम. हु? मिर्जा हाकिम एंड उज़्बेक्स. He seized the Sisodia capital of Chittor in 1568 and Ranthambore in 1569. Or in 1568, when in 1568 the Sisodia capital of Chittor was seized, and in 1569, कौन से ईयर में? 1569 में रणथंबोर. Yes. Now period 2. And when 1570 to 1585, military campaigns in Gujarat were followed by campaigns in the east in Bihar, Bengal and Odisha. So he launched his military campaigns where? In east. In सेकेंड पीरियड, जो उनका सेकेंड पीरियड था, उन्होंने मोस्टली अपने जो मिलिट्री कैंपेन्स कहाँ लॉन्च करे? ईस्ट में. फर्स्ट जो उनका पीरियड था उन्होंने कहाँ लॉन्च किए थे? वेस्ट में. आफ्टर गुजरात, अकबर स्टार्टेड मिलिट्री कैंपेन्स इन द ईस्ट इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा. सो वेस्ट के बाद उन्होंने कहाँ लॉन्च करे अपने मिलिट्री कैंपेन? मोस्टली ईस्ट में, एंड वेयर? इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा. And these campaigns were complicated by the 1579 to 1580 revolt in support of Mirza Hakim. Which, yes, revolt in support of Mirza Hakim. Then third period. Which period? Period third, 1585 to 1605. एक्सपेंशंस ऑफ अकबर्स एम्पायर. ये कौन सा टाइम था? जब अकबर ने उनका जो एम्पायर था उसको एक्सपेंड किया. अकबर लॉन्च कैंपेन्स टू एक्सपेंड हिज एम्पायर इन द नॉर्थ वेस्ट. वेयर? यस, कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट. कहाँ उन्होंने लॉन्च किया? नॉर्थ वेस्ट में. कांधार was seized from the Safavids. कश्मीर was accent. कांधार को क्या कर लिया गया? सीज कर लिया उन्होंने इस टाइम पे अपने पीरियड थर्ड में. कैंपेन स्टार्टेड इन द डेक्कन एंड बेरर, खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वन एंड सिंध. जो कश्मीर के साइड का एरिया था कब्जा कर लिया वहाँ उन्होंने. एज ऑल्सो काबुल. आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्ज़ा हाकिम, जो मिर्ज़ा हाकिम की डेथ के बाद उन्होंने सारा अपना कब्जा कर लिया उस एरिया में. देन in the last years of reign, Akbar was distracted by the rebellion of Prince Salim. Prince Salim here कौन थे? द फ्यूचर एम्पर जहांगीर, जो उनके सन थे. अकबर के जो सन थे प्रिंस सलीम, और जो एम्पर बने जहांगीर. आपने सुना होगा जहांगीर जो एम्पर थे, सो उन्होंने रिबेलियन कर दिया, यानी कि विद्रोह करने लगे अपने ही फादर का, अपने ही अकबर का. सो उनके सन थे, उन्होंने रिबेलियन करा, जो प्रिंस सलीम थे, और जो फ्यूचर के क्या थे? एम्पर जहांगीर. जहांगीर 1605 टू 1627, इनका जो कैंपेन चले, इनके जो इवेंट्स हुए इंडिया में, उसका क्या टाइम पीरियड था बेटा? 1605 टू 1627. जहांगीर कंटिन्यू अकबर्स मिलिट्री कैंपेन. जहांगीर ने कंटिन्यू करे जो अकबर के मिलिट्री कैंपेन्स थे. द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ एक्सेप्टेड मुगल सर्विस. जो सिसोदिया के रूलर थे उन्होंने एक्सेप्ट किया मुगल सर्विस को. कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख, द अहोम्स एंड अहमदनगर. जो कैंपेन्स चल रहे रिगार्डिंग अगेंस्ट हुम? अगेंस्ट द सिख्स एंड अहोम्स एंड अहमदनगर वर लेस सक्सेसफुल. वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, और यू कैन सी दैट लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख, द अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलोड. प्रिंस खुर्रम शाहजहां. प्रिंस खुर्रम कौन थे? वो थे जहांगीर के बेटे, और
जो आगे जाके क्या बने, फ्यूचर शाहजहां। सो जो प्रिंस खुर्रम शाहजहां रिबेल्ड अगेंस्ट जहांगीर, उन्होंने भी अपने पिता के खिलाफ, जिस तरह सेम एज जहांगीर ने अपने फादर अकबर के अगेंस्ट रिबेल करा, उसी तरह सेम एज जो शाहजहां थे किसके सन थे, जहांगीर के सन थे, उन्होंने भी अपने फादर के अगेंस्ट, इट मीन्स जो प्रिंस खुर्रम थे उन्होंने अपने फादर के अगेंस्ट, जहांगीर के अगेंस्ट रिबेल करा। एंड द एफर्ट्स ऑफ नूर जहां, Jahangir's wife, whose wife? Noor Jahan. And yes, Noor Jahan, whose wife, Jahangir's wife, to marginalize him were unsuccessful. सेम थिंग कंटिन्यू हो रही थी आफ्टर अकबर, कि अकबर के बेटे जो जहांगीर थे, अकबर के जो सन थे, उन्होंने उनके अगेंस्ट रिबेल करा। देन आफ्टर जहांगीर के जो सन थे शाहजहां और प्रिंस खुर्रम, उन्होंने अपने फादर के अगेंस्ट रिबेल करा। शाहजहां 1627 टू 1658, उनका जो कैंपेन थे, उनका जो टाइम था, उनका जो शासन का टाइम था इंडिया में 1627 टू 1658। शाहजहां कंटिन्यू द कैंपेन्स इन द डेक्कन, उन्होंने कहाँ कंटिन्यू किया ना, यस, मुगल कैंपेन्स कंटिन्यू इन द डेक्कन अंडर शाहजहां। शाहजहां ने कैंपेन्स करा। द अफगान नोबल खान जहां लोदी रिबेल्ड एंड वॉज डिफीटेड, क्या हुए, वो डिफीटेड हुए। Campaigns were launched against Ahmednagar. Then the Bundels were defeated and Orakha seized. क्या हुआ, जो कैंपेन्स हुए, लॉन्च हुए अहमदनगर के अगेंस्ट, उसके बाद बुंदेल्स को हरा दिया गया एंड ओरक्का को क्या कर दिया गया, सीज कर दिया गया। Campaign to seize bulk from the Uzbeks was unsuccessful. Yes, the campaign to seize what bulk from the Uzbeks was unsuccessful. क्या हुआ, वो जो कैंपेन्स, वो क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया। एंड द कांधार वॉज लॉस्ट टू द सफाविड्स, और सफाविड्स वॉज सक्सेसफुल टू सीज कांधार। सफाविड्स क्या हो गए, सक्सेसफुल, यस, टू सीज कांधार। In 1632, Ahmednagar was annexed and the Bijapur forces pleaded for peace. Then in 1657 to 1658, ये 1 years के बीच में क्या हुआ, शाहजहां सन हैड कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन। सेम जिस तरह जो शाहजहां थे, शाहजहां ने क्या किया था, अपने फादर के अगेंस्ट रिबेलियन किया था, जहांगीर के अगेंस्ट। जहांगीर ने किसके अगेंस्ट रिबेलियन किया था, अकबर। तो सेम वैसे जहांगीर का जो सन थे शाहजहां, तो शाहजहां के जो सन थे, उनके सन ने क्या करा, सबने उनके रिबेलियन करने लगे और उनके बीच क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। उस कॉन्फ्लिक्ट में, उस लड़ाई में औरंगजेब was victorious and his 3 brothers including दारा सुख were killed. उन्होंने क्या करा, औरंगजेब जो उसके सन थे शाहजहां के, और उनके जो और सन थे, उनमें से कौन विक्टोरियस रहा, कौन जीता, औरंगजेब जीता। और उन्होंने क्या करा, अपने तीनों भाइयों को किल कर दिया, इंक्लूडिंग दारा सुख को भी। देन शाहजहां वॉज imprisoned for the rest of his life in आगरा। आगरा का जो एक फोर्ट था, वहाँ शाहजहां को उसके जो सन था औरंगजेब, जो विक्टोरियस हुआ, उन्होंने अपने ही फादर को, शाहजहां को, उस फोर्ट में, आगरा में जो था, वहाँ इम्प्रिजेंट कर दिया, यानी कि वहाँ उनको बंदी बना लिया। देन औरंगजेब जो शाहजहां के सन थे, उसके बाद औरंगजेब के जो कैंपेन स्टार्ट हुए in 1658 to 1707. In the northeast, the Ahoms were defeated in 1663. Yes, where northeast में जो है Ahoms जो है defeated हुए, and which year, in 1663, though they rebelled again in 1689. But रिबेल्ड अगेन इन द 1680s, जो उन्होंने क्या करा, अगेन रिबेल करा। ही गॉट टेम्पररी सक्सेसफुल इन द कैंपेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजाई एंड द सिख्स। मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़ लेड टू दिस रिबेलियन।
Campaigns against the Maratha Shepherdian Shivaji were initially successful. जो कैंपेन्स हुआ अगेंस्ट मराठा शेफ्टियंस के और शिवाजी के, वो क्या हुआ, इनिशियली सक्सेसफुल हुआ. औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप फ्रॉम आगरा. औरंगजेब बहुत मतलब वैसे थे, इतने ज़्यादा अच्छे रूलर साबित नहीं हुए, वो काफ़ी एकदम लोगों को किल कर देना और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा वो करते थे. उन्होंने इवन शिवाजी की भी इंसल्ट करी and then declared himself an independent king and resumed his campaigns against the Mughal. Then Prince Akbar rebelled against Aurangzeb. अब ये प्रिंस अकबर जो किसके सन थे, औरंगजेब के जो सन थे उन्होंने क्या करा. यस, Prince Akbar rebelled against Aurangzeb and received support from the Marathas and the Deccan सल्तनत. वो क्या करा, वो अपने ही फादर के खिलाफ अगेंस्ट हो गए और रिबेल करने लगे. एंड देन ही फाइनली फ्लेड टू सफाविद ईरान. और फाइनली वो कहाँ चले गए, सफाविद ईरान. देन आफ्टर अकबर्स रिबेलियन, यस आफ्टर प्रिंस अकबर, जो प्रिंस अकबर औरंगजेब के सन थे, उनके रिबेलियन के बाद औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत. अब औरंगजेब ने क्या करा, आर्मीज कहाँ भेजी, डेक्कन सल्तनत में. Bijapur was annexed in 1685 and Golconda in 1687. तो बीजापुर में कब कौन से ईयर में कब्जा हुआ, 1685 एंड गोलकोंडा में 1687. From 1698 when 1698 औरंगजेब पर्सनली मैनेज कैंपेन्स इन द डेक्कन अगेंस्ट. औरंगजेब पर्सनली मैनेज करने लगे डेक्कन, वो जो वहाँ वॉरफेयर हो रहा था, कौन सा, अगेंस्ट द मराठास हु स्टार्टेड गौरिल्ला वॉरफेयर. कौन सा वॉरफेयर कर रहे थे, वो गौरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे मराठास. औरंगजेब के उसमें क्या था, गौरिल्ला वॉरफेयर क्या होता था कि रात में तो वो अटैक करते थे और दिन में भाग जाते थे. देन Aurangzeb had to face the rebellion in the North India of the Sikhs, Jat and Satnamis, in the northeast of the Ahoms and in the Deccan of the Marathas. अब औरंगजेब को और भी रिबेलियन फेस करने पड़ते थे जो इंडिया, नॉर्थ इंडिया में चल रहे थे, सिख्स के उसमें, जट में और सतनामीज में. After his death, his sons and succession conflict, same as previous emperors, same इनके जो previous राजा चलते आ रहे थे, his death was followed by a succession conflict amongst his son. वैसे उनके जो है sons में लड़ाई हुई और सेम इस वजह से ही औरंगजेब की डेथ हुई. Here, student, let's come here, map military campaigns under Akbar and Aurangzeb. As you can see, Kashmir in 1586, Lahore, Punjab here, Panipat, Delhi, Amber, Ajmer, Chittor, when 1568, Gujarat when 1572, then Malwa 1561, then Bijapur, just look at here, 1685, then Golconda when 1687, then Patna 1574, Bengal, Odisha, all these, Kandahar here also, Kabul also. Students, now let's come here. Our next topic is Mughal traditions of succession. So, or you can say that types of succession. There were two types of succession. How many types of succession? There were here two types of succession. The number one is primogeniture. Which one? Primogeniture. And the second one is copper cinery. Which one? Copper cinery. The Mughals did not believe in the rule of primogeniture. जो मुगल थे वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे primogeniture को. Where the eldest son inherited his father estate. क्या था primogeniture? In his succession था कि eldest जो son है वो inherit करेगा fathers के estate को. और where copper cinery जो था, in this succession division of state amongst all the son. जो state का division है वो सारे son में क्या हो, equal हो. primogeniture में ये था कि जो eldest son है उसे ही सारा inherited हो, सारा उसके father estate का. कॉपर सिनेरी में ये था कि डिवीजन हो स्टेट का जो अमंग्स ऑल द सन इक्वल हो. सो मुगल जो थे किसको करते थे, मोस्टली अडॉप्ट करते थे मुगल ने मोस्टली, और यू कैन से द मुगल अडॉप्टेड द कॉपर सिनेरी इनहेरिटेंस. मुगल ने कॉपर सिनेरी वाला
इनहेरिटेंस किया, अडॉप्ट किया. For today, that's it. Thank you all of you. Have a nice day ahead.